जहाँ भी डाउट लगे सीधे पूछ लोगे, ठीक है? मैं आपके लेवल को बिल्कुल नहीं जानता, बट ये पता है आपका बेस बिल्कुल जीरो मुझे देख लिया, ठीक है? आपको जहाँ भी डाउट लगे मुझसे पूछ लो, समझते? डोंट रेज योर डाउट्स। इफ यू गेट अ डाउट, क्या अंकल आप वहीं पूछ लो। क्लास में म्यूट नहीं बैठना है, क्लास में ब्रेन को लेकर बैठना है। आप यहाँ नहीं आए मेरे पास, आप ब्रेन को लेकर मेरे पास आए, अपने ब्रेन को यूटिलाइज करो। So we came to conclusion last time. So how I can spell what is edu.net? And why do we go for edu.net? Edu.net is a library. देखो मैं कैसे अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ। edu.net and पूरा कॉन्फिडेंट के साथ आप मेरे से कंपैरिजन करो और ट्राई करो आप मुझसे अच्छा निकलने की। बिल्कुल कंपैरिजन करो, बंदा शुरू कब होता है और क्या क्या बोलता है। edu.net is a library available in framework called system.data.dll. If I break this library, I will have namespace. So system is namespace, data is namespace, and data also consists several namespaces like SQL client, Oracle client, and OLEDB. Name suggests to me OLEDB is an old model for old database connectivity like MS Access. Oracle client again signify to me I can go with Oracle. SQL client for only SQL Server. SQL Server and .NET both are product of Microsoft. There is a compatibility with the SQL Server. Doesn't mean we cannot go with Oracle or MS Access. I can go, but there is a word called compatibility. We go for SQL Server with the .NET. So in that namespace, there is a namespace called data, which plays a major role for advanced topic of edu.net. We discussed that topic after 2 or 3 classes. But today there is a subjective concern with the SQL client namespace. This namespace is for performing the operations with the database concepts. SQL client namespace means there is a hierarchy. SQL client, top data and top system. Move from top to bottom. System.data.SQL client. In SQL client namespace we have several classes. SQL connection class, SQL command class, SQL data reader class. ये आप कहीं जाके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए. You cannot do in your life magical things. Never. किसी को पकड़ो उसको पढ़ाओ. SQL connection class, SQL command class, and data reader class. Initially we use. But as soon as we grow logically, we grow technically, we got fascination with the database, and we are very close to database, then we try to do some advanced part of database. Initially, there is a passion only for fetching the records or updating the records. As soon as we grow, we want to go for doing some time पे क्यों नहीं आते हो बालक? अरे यार, you are losing all time. यार बैठो. चुपड़ा बदतमीज फैन ऑन कर दो. Idiots. नहीं छोड़ो यार. Idiot बच्चा है, छोड़ो उसको. यार आप टाइम पे आओ. जब मैं बोलता हूँ तो मन से बोलता हूँ, याद करके नहीं बोलता. My experience is with me only. बेटे मना कर दो, क्लास में नहीं आओ, मना कर दो. और आप बालक जरा
कंसंट्रेट होकर सुनिए, ठीक है? माइंड को ध्यान मत कीजिए, हम सुनिए क्या बोल रहे हैं। क्योंकि आपको यही डेवलपर भी बोलेगा, यही फ्रेशर भी बोलेगा, पर डिफरेंस किस चीज़ का? उसके कॉन्फिडेंस पे। मुझे वो कुछ बोलेगा, कुछ नया नहीं बोलेगा, पर वो ऐसा बोलेगा ये तो मुझे आता है यार, ये तो छोटा सा चीज़ है मेरे लिए। दैट्स फॉर एक्सपीरियंस। आई स्पीक सेम अमाउंट ऑफ वर्ड्स इन a developers class, but with the confidence. So you are here for learning my confidence and the personality way I speak and try to do better. So I said SQL client namespace is having several classes: SQL connection class, SQL command class, and SQL data reader class. Initially we used 3 classes for performing the basic operations. As soon as we grow, we understand database. Okay, I am doing a database. So I have forgotten I am doing edu.net. I am forgotten. Okay, I am doing database. The man who worked in database, they can use edu.net. The man who is better grammar, he wants to go for learning vocabularies. So by learning edu.net, we cannot be good in database. But by learning database, you can superb in edu.net. Because by learning edu.net, I am supposed to write a query. Doesn't mean I am good in query. So you can download any database book from the net and go chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 10. How we can use SQL queries, how we can use functions, how I can use database procedure, how I can call trigger, how I can call view. So man is weak in edu.net because he doesn't know database concepts. I have shared Abhishek Gupta, he has selected there because he knows database better. Is it from KL Modi guy? Rashmi Arora, she knows database better concepts. So only we have 8 or 9 topics in database. You try to complete within 7 days. Basic query, functions, procedure, trigger. I should not wait for Sandeep Karan. Why do we? Once we start in a batch, I can get his momentum. But before getting his momentum, I would like to know what I am basically. So I said, it's a good time for you. I am starting edu.net. And what you do in backend, you go for database practice. Don't go for practice of edu.net. Because by edu.net you can go for fetching the data. Don't go for remembering the vocabularies. You go for learning a grammar. Database is a grammar. I want to grow in C#. You can't grow in C#. Go for OOPS. Do better OOPS, you can do in C#. So we have a different way of logical studies. We emphasis more on data, not in Java, but we forget 2 things in my life. One is called database concepts, second called what? OOPS concepts. So you go for 80% participate with those topics. And whenever you get time, you can do practice by Java or by C#, because you know you have to create an object to call the functions. So finally we have got 3 classes: SQL connection, SQL command. देखो लौट के वहीं आ गए. ये मोमेंटम आपको ध्यान रखना है. And this comes by the practice, not comes by attending my class. You can attend my class to get my personalities, but you have to speak on the end. So initially I required SQL connection, SQL command, and SQL data reader. And you want to go for doing advanced topic of database, like I want to go for calling procedure, I want to go for calling functions, I want to go for calling trigger. You go for advanced class in edu.net. Then we have a class called parameters and SQL parameter. These are most important class if you want to go for doing something advanced topic of database. Otherwise, initially we grow by SQL connection, SQL command and data reader. But later on, once you go in deeper in interview, then they will ask you definitely how you can call procedure, how you can call functions, what is view, why you want to make a view.
how you can differentiate database function with a procedure. Means they will not come to edu.net. Now they are moved into what? Database. They started C#, they moved to OOPS. So interviewer never judge you by the vocabularies. They judge you by your presentations, your personality, your eye contact, your gesture, your body language, your diction, your communication, and overall your personality, the way you speak and control on the OOPS and the database. And we do by Java and what? C#. That's why NCR guys are really weak and sick for getting a job. They emphasize, they crazy for more .NET, Java, and they do less database and that's why they didn't get. So now I'm practicing SQL connection class, SQL command class, and SQL data reader. But think logically, at right end we have database table. Right end. Uncle has database table. I want to communicate here. Why? Because I'm making a front end. I'm making a front end. So I want to go for willing to get a record from the database server. It means there is one man in the company who's handling a database. And there is one man in the company who's handling a front end. There is a great combination if man knows better, database and front end. This salary 10 plus, 15 plus. Why Abhishek Gupta has got salary approx 17,000? Because he knows both better. So in a company he can handle both issues, the database issue and the front end. Otherwise they can give you as a fresher. So he's a fresher guy. They can offer you 5,000, 6,000. Well, so I have to grow equilibrium in both ways. So finally SQL connection class. Why do we use SQL connection class? I want to communicate uncle because he has having a database and table. Purpose to fetch a data. You cannot do unless until you don't know where is my SQL server stands on which PC. Point 1, on which PC. Second point, what is the database name? So I'm looking. Third, I know table called student or any table. So SQL connection class, Nami SQL connection class will provide you physical connection. So by using SQL connection class, I can locate where is my database. So when you get a call, what is SQL connection class? You get down. Because in a specified point of time, what you can speak. So using SQL connection class, I can locate who I can communicate. You give me your address, I can communicate you. So fetching the data of database means I want complete address of database. And we can configure it by SQL connection class. But there is a two question comes into picture. Now I have a database in my own end, not on under uncle end. It means there is single PC like this computer. I have installed database, I have installed front end. It will have different address because I have got both in the same computer. Or I can mount or I can deploy database on different computer. So we can have two types of address. SQL connection class is smart class which can locate both address, the local address or the remote address. So now, what is SQL connection class? By this class, we can locate database. And obviously, to locate a database, we need to write proper address, feed proper address, then you can go for search. Otherwise, you will have exception. To feed the address, we use parameterized constructor of SQL connection class. To feed the address. To feed the address, we use parameterized constructor of SQL connection class.
And to detect the address, what is feed uncle? I have got a mobile to dial you. What is desktop? What is area stands? It's a parameterized constructor. 98183727 whatever 7. Then I click on dial. If I write 10-digit number of someone, then I click on dial. So what is dial? It's open. So open is a function of SQL connection class. By this function, I can have a proper connectivity or not. The judgment of connection can be done by which function? Open. I write 9-digit number, I get exception. But writing only 9-digit number, I didn't get exception because I haven't pressed dialing till right now. You can write a provider by parameterize construct of SQL connection class. नहीं तो फिर oops आ गई बीच में. तुम्हारे हर सेंटेंस में ग्रामर है यार. Last year I had given one batch to Manoj Khattar and I said, so you take my batch today. I'm not feeling well. Okay, Sandeep, I can take your batch. It was a batch evening 7 to 9. And he's a project manager. He was a PM in SL. Now he is in outside. So, Sandeep, तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं. मैंने ऐसा हो ही नहीं, मैंने कहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता है. मुझसे सीनियर है वो. बोले ना, तुम ऐसे इंसान को पढ़ा रहे हो जो बोल नहीं सकता है. So to whom you teach, that's most important. What you teach doesn't matter. I said, why? उनको has नहीं आता यार, been नहीं आता, had नहीं आता. They don't really form the sentence. Even if you teach very nice or very bad, or they understand. So by using SQL connection class, we write the what? Address or locator by parameterized constructor. Then I click on dial. It's called open. So open function will search the desirable database is available on that computer or not. So if I go for dialing to you, now this number which are given to me is right or not? Who can check? By the dialing. But writing on this area, that's what I have called you. So open function working as a dialing. Our desktop area is working as a parameterized constructor. This area grow 1 digit, 2 digit, 9 digit, 10 digit. But if you write 11 digit, it's not a correct. How do I know? Press dialing go. Okay. So now create an object. This is inbuilt class to SQL connection available in what? SQL client namespace is equal to new SQL connection. So it's a parameterized constructor. If I write double quotes within a class, it's called parameterized constructor. When you write your locator, to whom you want to locate, to whom you want to point. Purpose I know why I am pointing. I want to get the data. I want to go for saving the data. I want to talk to you. No sir. First to connect to me. Then you can talk to me. So I am connecting via parameterized constructor. Then you write your database provider. To whom you want to connect? Database. Suppose there is a database called XYZ. Is a name of the database for XYZ. So you write here initial catalog. Initial catalog. Initial catalog is a reserved keyword. It's a reserved keyword to represent the database. Initial catalog. You go to any hotel, give me catalog, you call say menu. You go to Nehru Place, purchasing a laptop, give me catalog. I can get a price list there. Initial catalog represent name of the database. You write here equal to what? But writing means doesn't mean
I can go connect. I have to go for dialing. Am I right? After writing, I have to go for dialing. अभी मैं डायल कर रहा हूँ, सॉरी अभी लिख रहा हूँ मैं, डायल नहीं करा है. He wants how much you are logical. And who's getting a job, baby? Who's logical? Semicolon. Then data source means name of the computer. Where database is kept? Where is database is kept? So semicolon equal to, right? Suppose Aurora uncle is the name of the computer. You can write the name of the computer, or you can write the IP address. You can write the what? Name of the computer, or you can write the what? IP address. But we mostly connect with the what? Name of the computer. And how you can get? Simple mathematics. But you go for interview and you will ask someone the connectivity, they will feel logical. Third, it's very tough to predict this computer, well, Aurora uncle, is my computer name or your computer name? Think logically. I know there is a database called XYZ is available on Aurora computer, Aurora uncle computer. But Aurora uncle computer is my computer or other computer. So this can be differentiated by, understood by integrated security is equal to yes. Means integrated. It means it's not someone's computer. It's my computer. Yes, sir. Yes, sir. Integrated. मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड क्या बोलो, एक ही सिस्टम में. अगर मान लो सिस्टम किसी और अंकल का होता, PC2 होता, PC2 ले लो, जरूर अंकल कंप्यूटर का नाम है, उस केस में ये फिर नहीं, बस और कुछ नहीं. अगर डेटाबेस किसी और सिस्टम पे होता, if database is kept on other computer, go for 2 parameter only. If you mention third parameter, it's signify that now we have, that's why I have kept 2 computers in my room. I can allow to go in that room only Saturday and Sunday. You can go and you can have a front end and back end. There is a physical LAN, I have made it there yesterday. You make a database on X computer and you go to PC2 computer, you can connect. रेटिंग अंकल, इसका मतलब ये होता है कि आप नाम ही इंटीग्रेटेड पढ़ना था, फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा कि कैलकुलस, इंटीग्रेटेड एक्स साइन एक्स डी एक्स, सिक्योरिटी फिजिकल टू व्हाट, यस. अब तो बिल्कुल तय है कि ये लाइन का मतलब है कि जिस डेटाबेस को हम लोकेट कर रहे हैं वो मेरे ही कंप्यूटर पे है, उसका नाम अरोड़ा अंकल है. समझ गया? इसे क्या बोलोगे? दिस इज कॉल्ड 2-tier आर्किटेक्चर. 2-tier, टायर मत बोलो, 2-tier. डोंट से टायर. दैट इज कॉल्ड TYRE. इसे TIE. Mostly I have seen this in the center. This students spell tire. It's a tier. Tier means I have got front end, uncle has got back end, there is a LAN in between. अच्छा, अब तो मजा आ गया यार, एक नया डेफिनेशन मिल गया. Aided audit supports 1 tier और 2 tier. Aided audit supports 1 tier. तो मैं ये बोल रहा हूँ, चीजों को प्रैक्टिस करने से उसमें निखार आएगा यार. पंकज द्विवेदी 9 महीने के अंदर
अंकल उसने मेरे 17 बार कुछ की क्लास करी, 17 टाइम्स। और 21 बार फ्रेमवर्क की क्लास करी, 21 टाइम्स। दीप्ति मेरे को कॉल नहीं करते थे, दीप्ति को, दीप्ति सर की कोई नई बैच शुरू हो रही है क्या? हम उससे एज है बड़ा, बहुत मुझे बताना भूलना मत, मेरा मोबाइल नंबर अपने पास है। जब जितनी बार सुनोगे ना तो आपका माइंड इंगेज रहेगा, इन्वॉल्व होगा। इन्वॉल्वमेंट विल गिव यू नॉलेज, but sitting alone will give you dullness. Sitting alone is needed when you have got full of knowledge. You have got a plenty of knowledge. You have got several knowledge. Then I want to be alone. Why? I want to do R&D with my knowledge. But when you are feeding the knowledge, you have to be in association. So Edu.in supports 1 tier as well as 2 tier. And 2 tier के लिए we don't need baby this one. अगर ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये क्या हो गया बोलो? 1 tier हो, सॉरी 2 tier हो गया। और जहां इंटीग्रेटेड लगा दिया, मतलब डेटाबेस और कंटेंट एक ही सिस्टम में। तो 1 tier 2 tier ना आया तो मुझे मैथमेटिक्स आती। मैंने कहा मैं हर चीज को मैथ से जोड़ता हूँ। एपी का इक्वेशन 1 + 2 + 3 +++ n। चलो ठीक है, एक प्रोग्राम खोलते हैं। तो जो लिखा, अब नाउ अंकल, अब इसके बाद उप्स काम आती। चलो इसको तुम ट्रांसलेट करो। अब जावा से कराओ चाहे सी शार्प से कराओ, हमें उससे मतलब ही नहीं। आई वॉन्ट ट्रांसलेशन। देन वी सर्च सेंटर इन नोएडा टू लर्न .NET। मेरे जो जानने वाले बंदे जो काफी क्लोज होते हैं, जो मेरे बिहार से आते हैं या जो लोकल होते हैं यहाँ के, उनको बोलते हैं आप इनको मेरे पास 1 महीने के बाद भेजना। क्यों? 1 महीने बोलो को डेटा में टूल्स पढ़ के आए। यूजिंग सिस्टम, अब सिस्टम एक नेम स्पेस है। यूजिंग से क्या होगा? आई कैन इंपोर्ट ऑल द क्लास ऑफ सिस्टम नेम स्पेस एंड दे आर 120 120 क्लास इन सिस्टम नेम स्पेस। तुमसे पता क्या पूछेंगे? तुम 10 क्लास का नाम बोलो। कब से सीख रहा .NET? तो 6 महीना हो गया। तुमको 10 क्लास का नाम नहीं पता है। तुमको बचपन में 10 मोबाइल नंबर पता है लोगों का, अब तुमको 10 क्लास नहीं पता। देयर 120 क्लास इन दैट नेम स्पेस 120। मैं इस नेम स्पेस को 12 साल 2000 मैं इसको 12 साल से देख रहा हूँ, ऐसा 11 साल से। अब हो जाएगा जुलाई में 12 साल। जब भी आया था अंकल, ओनली 46 क्लास लेकर आया था। तो आदमी ग्रो कर रहा है बाय नॉलेज, बाय मनी। नेम स्पेस भी ग्रो कर रही है, बोलो भाई, क्लासेस एंड फंक्शंस। चलो, कन्वर्ट क्लास, डेट टाइम क्लास, कंसोल क्लास, कैड क्लास, इन्वायरमेंट क्लास, मुझसे पूछना एरे क्लास, और पाए जाते हैं इन सिस्टम नेम स्पेस। तो पहले क्वेश्चन से रिजेक्ट हो गए। टेल मी एनी 10 classes of system नेम स्पेस। एंड बच्चा स्टार्ट्स विद द लाइफ, टेल मी एनी 5 word by A। A for apple। Once he knows he can find 5 word by the A, where will we be? उसकी लगाव नहीं है अंकल, उसको चीजों से लगाव नहीं। उसके लिए .NET क्या बोलो, यूज एंड थ्रो बोलता है, बंद कर देता है। उसको चीजों से अफेक्शन नहीं। जब तक लगाव नहीं होगा आप सीख नहीं पाओगे। What is the purpose for opening a laptop? That's the question.
The way he is operating to open the laptop. He is opening a laptop by the demand of time. He is not opening a laptop at any point of time. Even though रात के 2 बजे उठ के पढ़ने बैठे, रात के 12 बजे डेट्स कॉल लगा. तो सिस्टम नेमस्पेस में 120 क्लास है. अगर गूगल पे लिखो सिस्टम नेमस्पेस, क्लासेस के नाम आ जाएंगे. हम नहीं कहते सारे क्लास नाम याद कर लो, आपको नाम से पता चल जाएगा ये इंपॉर्टेंट क्लास है. चलो भाई, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर. अ सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल. नाउ बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट आई एम सपोज टू इंपोर्ट द classes of SQL client namespace, and this namespace is having approx 50 classes, not 50, more than 50 classes. Which one? SQL client, not I'm saying data. Then we need 5 class name: SQL connection, SQL command, SQL data reader, SQL data adapter, SQL command builder. लिखवाया क्लासेस. आप मेरी एक भी क्लास छोड़ दोगे, आपको अंकल आई एम राइट, आपको मेरी सेकंड क्लास बिल्कुल समझ में नहीं है. मैं विचार से नहीं पढ़ा था, बेटा कैसे. चाहे आपकी कितनी भी तबीयत खराब हो, डोंट मिस माई क्लास. इट्स ए कमिटमेंट. कोर्स इज ए कमिटमेंट. पब्लिक क्लास. अब मैं इनका अपने मन की बातों को ट्रांसलेट करता हूँ. हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ट्रांसलेट करने. आई नो बेटर ट्रांसलेशन. पब्लिक स्टैटिक वॉइड so I have made my own class to communicate with the database. So to communicate, there is a most important class for SQL collection. तो कहाँ लिखना है मुझे पता है, तुम्हारा मुझे नहीं पता है. सॉरी, आई डोंट नो हु आर यू बेबी, आई डोंट. बट यहाँ लिखने का मतलब ये क्लास के मेंबर वेरिएबल है. कौन है बोलो? मेंबर है. हमें बहुत सारे बैच बनेंगे रूट्स की, और तो बहुत सारे बैच बनेंगे. इतने सारे पुराने बैच खत्म होने वाले हैं. तो पब्लिक टेस्ट. रात में मेरे अंकल एक पोस्ट करा है, आप उसको पढ़ना चाहिए. देयर इज अ नोट्स ओनली फॉर कंस्ट्रक्टर. बड़ा मुश्किल से खोजा है, उसी मुझे खोजने में घंटा लग गया. अब उसको पढ़ना है. कोई बच्चे रात को 2 बजे भी पढ़ रहे हैं. अब पढ़ेंगे ना. रात को मैंने देखा 2 बच्चे. अब तुमने डाल दिया कंस्ट्रेंट आपके साथ. कल आंटी का फोन आया रात के 8 बजे रोते रोते. वो देखिए बेटा है मेरे पास, वो हाथ से बाहर निकल रहा है. बोलता क्या है, मैं नहीं जाऊं या जाऊं तुमको क्या फर्क पड़ता है. एक 24 साल का बच्चा माँ को बोलता है ऐसे. और फादर को पता नहीं है बात, फादर को हार्ट का प्रॉब्लम. हम नहीं जाए या जाए तुमको क्या फर्क पड़ता है. तो उसने अपने फादर के पैसे को देख रखा है थोड़ा पैसे वाले का बेटा हो, अच्छे बिजनेसमैन की, क्योंकि 2 मकान भी यहाँ पे अभिनव में. तो ही नोज द फादर लिमिट्स. बोलती बेटे मैं आपके पास आऊंगी मिलने, पहले मैं अपने बेटा को थोड़ा ठीक करूं. अब कंस्ट्रक्टर आ गए. जैसे क्लास की बनेगी ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर फॉर्म एज ए ट्रिगर. जैसे इंसर्ट इनटू करूंगा ट्रिगर फैल.
इसको फायर कैसे करें? इसका सिंटैक्स देखो, टेस्ट, इसका भी नाम क्लास, टेस्ट, इसका भी नाम। तो कंस्ट्रक्टर क्या हुआ? जो तुम्हें काम सबसे पहले करना है, सबसे पहले वो काम। सबसे पहले मीन्स देयर इज ए प्रोग्राम टू बी राइट। इस प्रोग्राम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? सभी को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। डिक्लेयर करो यहां पे, इनिशियलाइज कहां पे करो? कंस्ट्रक्टर। एक मकान का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे तो नहीं पता, मेरे भाई को पता, बिकॉज बी सिविल है वो। तो एक मकान का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बोलो, नींव पड़ना, कंस्ट्रक्ट। आप कंस्ट्रक्टर मत देखो ना, कंस्ट्रक्ट देखो, कंस्ट्रक्ट। हमारी डिलीवरी क्या है? कंस्ट्रक्ट है। एक ह्यूमन पर्सन के लिए लैपटॉप असेंबल्ड, कंस्ट्रक्ट, it is constructed. Now you can use baby. You can use for making the functions. You can use my laptop because it is constructed. You can use by the functions, by the events, by calling button or pressing button. तो जैसी क्लास की बनेगी ऑब्जेक्ट T न्यू वर्ड, जैसी T की मेमोरी एलोकेट हुई, जैसे ही बना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अंकल इसको आप देखिए, कंस्ट्रक्टर ऐसे कॉल होता है, ये लाइन से कॉल होता है। व्हाट इज द सिंटैक्स टू कॉल द कंस्ट्रक्टर? आप किसी बच्चे को खड़ा करो, बोलेगा ये लिखने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो बदतमीज बच्चा है। ये लिखने से अंकल कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, ये तो सेंटेंस है। ये करने से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये हमने कहा रखा है सी। अगर शो फंक्शन है तो कॉल भी किसके नाम से होगा? बोलो, शो से होगा। आप AKG के बच्चे हो, कॉल भी किससे होगा? बोलो, AKG से होगा। ये बच्चा कौन है? बोलो, टेस्ट है, कॉल भी किससे होगा? बोलो, टेस्ट से। किसी का नाम छोटू है, छोटू से कॉल होगा। और कॉल होने के लिए आवाज देना पड़ेगा। आवाज देने के लिए मेमोरी एलोकेट तो करनी पड़ेगी। अरे बोलो यार, छोटू कैसे बोल दूं मैं? तो राइट टू लेफ्ट देखो, बच्चे नालायक देखते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कैसा रहा अंकल? बढ़िया। मतलब इसमें कंफ्यूजन हो गया मुझे। वो कहते हैं कि न्यू लिखते ही वो कॉल होगी। नहीं, जैसे न्यू वर्ड लिखेंगे वो तो फिर टेस्ट क्लास का नाम दिया। हाँ, टेस्ट दिया। ये देखिए, मान लीजिए आपने, मान लीजिए हमारे अंकल आपने ऐसा पास कर दिया, 12 पास कर दिया। अभी क्या खोजेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर खोजेगा। ये कहां फायर हुआ? इसका अंकल जो सिग्नेचर है, इसका सिग्नेचर मैच होना चाहिए। और मैच होने, कॉल होने के लिए भाई मेमोरी तो खर्च करनी पड़ेगी, आवाज तो निकालनी पड़ेगी, मेमोरी एलोकेट तो करना ही होगा। ये नहीं बोल पाते हैं बच्चे इधर को। ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। और अंकल एक ऑब्जेक्ट से एक बार में, एक ऑब्जेक्ट से एक ही बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। हम एक ही बार बन सकते हैं, हम बार बार नहीं बन सकते। हमारी जन्म हो चुकी है। एक मकान का 2 नींव नहीं बन सकता, एक मकान में एक ही नींव। अगर दोबारा नींव बनना तो मतलब मकान को डिस्ट्रक्ट किया गया है, तोड़ के दोबारा फिर मकान बन रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट से एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एक बार, और ये वाला एक ही बार कॉल होगा। क्यों एक ही बार कॉल होगा? अरे बोलो यार, 2 बार कॉल करना तो 2 बार लिखो ना ऐसा, कंट्रोल C
कंट्रोल। बट ये नाम सेम हो गया अंकल। पता मैं क्या बोल रहा हूं, आप मुझे एक ही बार कॉल कर सकते हो, बस आप, और आप भी मुझे एक ही बार कॉल कर सकते हो। मैं मल्टीपल कॉल होऊंगा, बट एक से दो बार नहीं। तो मेरा नाम चेंज करो। अंकल ने मेरे को कॉल किया, तो बच्चे का नाम नहीं पता मुझे, क्या नाम है? गौरव। मेरे को गौरव ने कॉल किया। कोई भी कंस्ट्रक्टर क्यों ना हो, एक ऑब्जेक्ट से एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। मेरी दो डेट ऑफ बर्थ हो ही नहीं सकती है यार। मेरे पास मल्टीपल डिग्री हो सकती है, बट एक डिग्री का एक ही टाइम हो सकता है। कंस्ट्रक्टर कि कब बना था, अगर दो कंस्ट्रक्टर हो तो अगर आप जितना कंस्ट्रक्टर लेना ले लो, बट एक ऑब्जेक्ट से एक बार में एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो, नाम तो दो कंस्ट्रक्टर भी सेम ही होंगे। तो उसके लिए ये डिफरेंट पास करोगे, पैरामीटर पास करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे? इंट ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया कि दो नाम तो हो ही नहीं सकता है किसी भी चीज का सेम। ना ना देवी, अब यहाँ 12 लिखो, 12 तो 12 किस में जाएगा? ये देखना, तुम क्या पढ़ रहा बच्चा, इसको तो देखना, इसको देख, ये इससे बोलो क्या मैच कर रहा है? तो फिर कैसा रहा अंकल आज? कंस्ट्रक्टर सिखा रहा था, सिखा दिया। कभी से बाहर मत जाना प्लीज। आप ये देखो कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे हो रहा है, यहां से कॉल हो रहा है। अब इस वक्त क्या होगा अंकल, जी से ये वाला कॉल नहीं होगा, क्यों? ये मैच नहीं कर रहा है इससे। तो बैठते डिरेक्शन हो जाता है वहां। मेरी तो जिंदगी चली गई इंटरव्यू लेने और देने में। बंदा आया, स्मार्ट बंदा है, गोरा चिट्टा मस्त दिखने में, 5 मिनट मुंह खोली लगा उल्टी कर रहा है, भागो उसको। और पंजाबी सुनने का नहीं, जीवना सीधा किसी का नहीं सुनना। या संदीप देखो आ रहा है ना, वो बड़ा स्मार्ट बन रहा है अपने आप। मुझे वास्तव में लगे एकदम चमकता हुआ शर्ट, मस्त मगी मोबाइल, अच्छे घड़ी। अब देखो जो मुंह खोलेगा देखना नहीं बोल पाएगा, कि नॉलेज उनको दिख जाता था। आई वॉन्ट बिलीव बंदा बोल क्या रहा है। मैंने कहा सर आप पॉमिस्ट्री क्यों नहीं करते? बोलते यार वो मेरा फील्ड नहीं है, मेरा फील्ड है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। द वे यू कम इनसाइड माय रूम विदाउट सेइंग एनी वर्ड आई कैन चेक योर नॉलेज। और हर आदमी अपने फील्ड में निपुण होता है। एक डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है, सारी बात कैसे बोल देता है। हरिद्वार जाओ, तो बंदा आपको टकराएगा कभी नहीं, इन फ्यूचर बोलेगा ये काम मत करो, ये काम करो, पता नहीं क्यों बोल दिया। हर आदमी अपने काम में निपुण होता है और बोलने की आवश्यकता आपको नहीं। हाँ, पैरामीटर क्या है, आर्गुमेंटिक और क्या है, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी, किसी मतलब ऑब्जेक्ट है सर, उसकी मोर देन प्रॉपर्टी हो सकती है। हाँ तो सर जो नॉन, अरे बच्चा तुम समझना, कंस्ट्रक्ट वर्ड से तुम बाहर क्यों जा रहे हो? कोई चीज एक ही बार बनेगा ना यार, कोई चीज बार बार कैसे बन सकता है? बताओ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 कैसे हो सकता है यार? सर नेम तो हो सकता है ना, एक नेम 2 नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्ट एक ही बार होगा ना। ये कितनी बार बनेगा ढक्कन? ये एक ही बार बनेगा ना। और जब ये बनेगा, या तो इसको फायर करेगा या तो इसको फायर करेगा। वो डिपेंड करता है इसके, वेरी नाइस, सिग्नेचर पे। आया समझ में? पूछ लो, ठीक है अंकल? चलो, अभी इसकी आवश्यकता हमें नहीं। अब यहां पे आप कॉन इज इक्वल टू न्यू वर्ड प्रिंसिपल कनेक्शन, और यहां पे
आप देखिए अंकल, जैसे हम मेरा कंस्ट्रक्टर है वैसे इसका बोलो कौन है, पैरामीटर वाइज। अंतर बस ये कि ये मेरी बनी बनाई क्लास है, एक ये मेरी क्लास है, ये किसी की बोलो क्या बनी बनाई क्लास है। तो क्या देख रहे हो अंकल, जिसने क्लास को पढ़ा वो किसी के बने बनाए क्लास को पढ़ सकता है। ये बच्चे मुझे क्या समझेंगे, मुझे झंकार समझ सकता है। जिसने क्लास पढ़ी वो क्लास को समझ सकता है। जो आपके साथ है वो आपको समझ सकता है। The man can learn class who knows class. जिसने क्लास पढ़ी, ये किसी की बनी बनाई क्लास है, ये क्या बोलो मेरी क्लास। अगर मुझे अपनी क्लास बनाने आएगी मैं किसी के बने बनाए क्लास को समझ सकता हूं। अच्छा, ये उस क्लास का बोलो कौन है, पैरामीटर वाइज कंस्ट्रक्टर। ओके, ठीक है। इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नाम दें, नेम ऑफ द डेटाबेस। चलो नया डेटाबेस क्रिएट करेंगे आपके बैच के लिए। मॉर्निंग बैच डेटाबेस कहाँ होगा, मेरे सिस्टम पे ही होगा। नाम देना पड़ेगा, डेटा सोर्स नाम हमने चेक कर लिया, CSC-PC। अब ये नाम क्या है, मेरे लोकल सिस्टम का है, तो क्या लगाएंगे बोलो, और ये 1 tier हुआ, क्या हुआ बोलो, 1 tier। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू यस। अब अंकल इस ऑब्जेक्ट से, इस यूज से ये लाइन एक ही बार फैल, मतलब क्या हुआ, आप देखो ना, आपने मोबाइल परचेज करी, आपने वही उसी पर लगा दिया सिम कार्ड। हम बार-बार सिम कार्ड क्यों लगाए यार, पर कॉल में नया सिम कार्ड क्यों लगाएं। एक बार ये कंस्ट्रक्ट हो गया, एक बार कनेक्शन बन गया, समझ गए। अब बनाते हैं फंक्शन। ये मेरी क्लास की फंक्शन है। हाँ, ये फंक्शन मैं ऑब्जेक्ट से बार बार कॉल कर सकता हूं, लाखों बार, 200 बार, 10 बार, बट मैं इस ऑब्जेक्ट से ये बार बार कॉल नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है मेजर कंस्ट्रक्टर और फंक्शन के बीच में। फंक्शन एक ऑब्जेक्ट से मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर एक बार अपने ऑब्जेक्ट से एक ही बार कॉल, नाम ये कंस्ट्रक्टेड। अब आगे अंकल अगला क्लास कौन है, कमांड है। नाम ये कनेक्शन के बाद कौन होगा, एसक्यूएल कमांड होगा। अब इस क्लास के पर्पस क्या बताते हैं। इस क्लास के अंकल 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्रामर ने बनाया, 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डबल कोट्स, कॉमा। तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किससे जुड़ गया, कौन से, हमें नहीं दिखा, पता नहीं क्या दिखा, लिंक हो गई। हम सी की बात करें तो लिंक लिस्ट हो गया। हम नॉर्मल सिलाई बुनाई की बात करें, ये जुड़ गया। और ठीक से बात करोगे इलेक्ट्रिकल लेवल पे तो 2 पोल एक तार से क्या हो गया बोलो, जुड़ गया। तो कौन ऑब्जेक्ट किससे जुड़ गया, कमांड से। ये कमांड ऑब्जेक्ट किससे जुड़ गया बोलो, कनेक्शन से। 2 ऑब्जेक्ट जुड़ गए आपस में, लिंकिंग हो गई आपस में। अब यहां पे अंकल आप पास करेंगे क्वेरी। अब जुड़ने का मतलब क्या है, जुड़ने का मतलब क्या है, देयर इज अ मैसेजिंग बिटवीन 2 पर्सन। तुम कैसे हो, मैं ठीक। अब जो आपस में करेंगे क्वेरी करें, दो पोल एक तार से क्यों जुड़ा, किस चीज के लिए, सुपर।
अरे करंट के लिए बोलो कौन, करंट का मूवमेंट होगा, ये करंट ऐसे जाएगी या करंट ऐसे आएगी, पर ऐसा होता नहीं है, करंट एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो क्या सिंगल लिंक लिस्ट है। बट जो हमने जुड़ा है दोनों पर्पस के लिए, देना भी है और लेना भी है, मतलब रिट्रीवल भी करनी है और इंसर्ट भी करनी है। जब हम क्वेरी पास हो, टेबल का नाम, अब ये क्वेरी क्या है, इस कनेक्शन के पास जाएगी और कनेक्शन के पास किसका नाम है, डेटाबेस में। सो व्हाट इज SQL कमांड क्लास, ठीक से बोल सर। वंस अ कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, वंस a connection is established by SQL connection class, then we can go for query, we can request, we can get response, and we really want to get response. This is done by SQL command class. तो command class से आप पहले request करोगे और फिर आपको क्या मिलेगा बोलो, response। किस चीज का response, query का response। अब ये क्वेरी है, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉर गेटिंग ए रिस्पॉन्स द फंक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूट रीडर। क्या बोल रही हो, फ्रॉम टेबल का नाम दे दो स्टूडेंट। एग्जीक्यूट रीडर इज ए फंक्शन। अब सुनो, अब ये क्वेरी सही है ये गलत है। अब देखो अंकल दो चीज देखिएगा, ये हमने जो कनेक्शन लिखा है ना, ये मत सोचना मेरा उससे फिजिकल कनेक्शन हो गया। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कॉन डॉट ओपन। तो ये जो लिखा है मैंने सिंपल मोबाइल लिख पे टाइप कर दिया, अभी डायलिंग नहीं करी, सुन रहे तो ओपन किसका फंक्शन हो गया, किस क्लास का नाम, ये ऑब्जेक्ट से कॉल करो। जो फंक्शन ऑब्जेक्ट से कॉल होता है उस क्लास का क्या मेंबर है। बट ऊप्स डेटाबेस के अलावा अंकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप डॉट इन जावा 10% ही जानो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो कुछ आपको रिटर्न करेगा जरूर। तो देखो अंकल ये फंक्शन क्या है, आप जो क्वेरी लिख रहे हो ये क्वेरी एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये वाला फंक्शन। आप जो ये लिख रहे हो डबल कोट्स में बोलो कौन, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, नहीं है समझ। अब ये एग्जीक्यूट करेगा तो कुछ ना कुछ आपको देगा जरूर, आपको रिस्पॉन्स देगा। अगर रिस्पॉन्स देगा आपको होल्ड करना पड़ेगा रिस्पॉन्स। यहां से रिक्वेस्ट किया है, अरे बोलो यार मैंने अंकल को रिक्वेस्ट किया मेरे को अब टेबल दे दो, अभी देता हूं, अभी देता हूं। ये वर्ड जो बोलना है इनको अभी देता हूं, पर इनके लिए इनको कुछ ना कुछ प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। तो अभी देता हूं तो मुझे होल्ड करना पड़ेगा इनको देने के बाद। तो कहां होल्ड करूंगा, SQL डेटा रीडर। ये फंक्शन किस क्लास को रिटर्न करेगा, SQL डेटा रीडर। नहीं है समझ में। और क्या लेगा ये बंदा, क्या होल्ड करेगा, क्या होल्ड करेगा, जो मैंने क्वेरी करी है वही होल्ड करूंगा ना मैं। अंकल मेरे को पानी दो, तो मैं क्या होल्ड करूंगा, पानी तो होल्ड करूंगा और क्या होल्ड कर सकता हूं। तो जो रिक्वेस्ट करेगा उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, और रिस्पॉन्स मिलना चाहिए प्लीज, अदरवाइज आप रिट्रीव कर ही नहीं सकते हो। आरडी के पास क्या है, टेबल का बेस एड्रेस है। आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, ढक्कन फ्रॉम टेबल। मैंने कहा मुझे उस दुकान का सारा सामान दे दो, सर उस दुकान का एड्रेस ले दो जाओ। स्टार फ्रॉम टेबल, अंकल स्टार मुझे इस टेबल का सारा कॉलम दे दो, सारा कॉलम दे दो। इस फंक्शन ने क्या कर दिया, इस बंदे को
उस दुकान का, उस टेबल का बोलो क्या दे दिया, एड्रेस दे, जाओ ले लो। बट ये बंदा एड्रेस लेने के बाद सारा डेटा होल्ड नहीं कर पाएगा, रो बाय रो होल्ड कर पाएगा, एक सामान लेगा, अगला ग्रेड लेगा, अगला जो भी लेगा, रो बाय रो होल्ड करेगा, राइट? ठीक है, अब क्या लगा दिया, वाई आर डी डॉट डी। तो रीड इज ए फंक्शन, रीड इज ए फंक्शन। तो वाई रीड, हमें उस टेबल का बेस एड्रेस मिल गया। ऐसे देखो ना, इस प्रोग्राम से बाहर निकलता, ऐसे देखो, मान लो टेबल है, इसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है और उसका फोन नंबर है। पहला रोल नंबर 1, नेम दे दिया, क्या बारह नाम बोला, फोन नंबर दे दिया कुछ 90, मेरा नंबर दे दिया, चलो। रोल नंबर 2 दे दिया, अंकल का नाम दे दिया। उसी नंबर दे दिया। अब ये टेबल है जो अंकल के पास है, ये शॉपकीपर है, मैं इनका कस्टमर हूं। तो क्या मांग रहे हैं इनसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, स्टूडेंट। तो मैंने क्या बोला, सारे कॉलम दे दो, सारे कॉलम इस टेबल का। क्या अगला बंदा सारा इकट्ठे कैसे होल्ड कर लेगा यार, रो बाय रो होल्ड करेगा ना वो। अरे बोलो यार, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा फंक्शन हुआ, एग्जीक्यूट। अब ये फंक्शन क्या देगा, ये फंक्शन क्या देगा, इस टेबल का बोलो क्या देगा, बेस एड्रेस देगा। मान लो इस टेबल का बेस, मान लो मैं इसको ऐसे कवर कर रहा हूं, इसका मान लो बेस एड्रेस हो गया 101, मान लो पूरे टेबल का, और रो का मान लो एक रो है, पहली रो मान लो इसका 109 बेस एड्रेस है। अरे यार हर फ्लोर का भी एड्रेस है ना, मान लो D55 मान लो बिल्डिंग का एड्रेस है, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 3 एड्रेस है एक बेस एड्रेस के। अरे बोलो, ये पोस्टमैन तीनों जगह आता है। तो D55 क्या हुआ, टेबल हुआ। अरे बोलो, ये टेबल का बेस एड्रेस हुआ, और ये क्या बोलो, ये टेबल का बेस एड्रेस हुआ, और ये क्या बोलो, 109 क्या बोलो, पहले रो का एड्रेस है, 110 क्या बोलो, सेकेंड रो का एड्रेस है। अरे बोलो, देखा लॉज नहीं देखा है, लॉज में रहे हो, मैं तो रहा हूँ लॉज में, गंगा भवन लॉजिक था, रुकिंग नहीं कॉलेज में, क्या था गंगा भवन। तो 15-16 रूम होते थे एक साथ। एक लॉज की पूरी एड्रेस हो गई, रूम नंबर 101, रूम नंबर 102, रूम नंबर 103। इसको आप बोलते हो हॉस्टल, बोलते हो हॉस्टल। हॉस्टल क्या एक लॉज है और कुछ नहीं, नो फैसिलिटेशन, नो ड्राइंग रूम, नो बेडरूम, नथिंग, नो किचन, इज ओनली वन रूम। एंड फॉर्चुनेटली जो मेरा रूम पार्टनर था, मेरे को जब पहले हॉस्टल एलोकेट नहीं हुआ रुकिंग कॉलेज